Hello students, this is Naresh Sharma from RS Global Schools. Today we are going to study a lesson from Snapshots, that is the address by Marga Minko for class 11. Marga Minko is the pseudonym for Sarah Minko. The real name of the writer is Sarah Minko and this is the fake name made by the writer. She was a Dutch journalist and writer. The story tells about the human predicament that follows war. The war has mentioned of the time when Hitler was there and the war was between Nazis and Jews. During that war, many people living in Holland were sent to concentration camps for the treatment. There, the people were treated very badly, they were tortured, and the narrator's family also was sent there. But and hardly anyone could survive. Fortunately, narrator was saved. Narrator could come back from there. When she came back, she directly went to Holland at this address, house number 46, Marconi Street. This was the address of Mrs. Dorling. When she knocked the door, a lady came there, and that was Mrs. Dorling. She asks her, "Who are you?" The narrator introduced herself as Mrs. S. daughter. But Mrs. Dorling denies to recognize her and she behaved her rudely. Actually, the narrator had gone there to get her belongings back because before the war started, the narrator's mother had given all the valuable things, all her valuable belongings to Mrs. Dorling for keeping safely. So the narrator went there to get those belongings back with her. When she had to return from there empty-handed at the first visit, she recalls past memories when her mother told her to keep this address in her mind and to get the belongings back after the war is over. But some days later, when the narrator could not forget her belongings, she revisits there and this time she finds Mrs. Dorling's daughter in the home because Mrs. Dorling was not there in the home. She had gone to market for some purchasing. Mrs. Dorling's daughter received the narrator and took her to her dining room. There, narrator could see many things. Mostly, the things belong to the narrator. She saw there an old-fashioned candle holder, woolen tablecloth having burn mark, silver spoons, white teapot with golden border, antique plates, etc., and so many other things. But the narrator had known till then that easily the narrator could not get these things back, so the narrator wanted to forget these things for forever.
and it was the time to leave for the narrator. So without waiting for Mrs. Darling, the narrator took permission from Mrs. Darling's daughter to go home, and when she was going home, she wanted to forget this address and her belongings also. So this way the story ends, and the Hindi version of the story will be in the second part. Thank you. तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी जो है, द एड्रेस, जिसे कि मार्गा मिको ने लिखा है, ये स्टोरी किसके बारे में है? ह्यूमन प्रेडिकेमेंट। प्रेडिकेमेंट क्या होता है? अनप्लेजेंट सिचुएशंस। जब इंसान को बहुत प्रताड़ना मिल रही थी, ये उस समय की बात है जब हिटलर था। आप सभी लोग जानते हैं हिटलर के बारे में कि वो बहुत ही ज़्यादा डिक्टेटर था, तानाशाह था, ठीक है ना। और नाजीज और जूस के बीच में वॉर चल रहा था, उस समय की बात है। नरेटर और उसकी फैमिली जो होती है वॉर के ड्यूरिंग, उसको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है। कंसंट्रेशन कैंप वो कैंप होता था जहां पर लोगों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता था और उनको बहुत ही बैडली ट्रीट करते थे। अब वॉर से पहले नरेटर की जो फैमिली थी, नरेटर की जो मदर थी, उसकी मदर ने एक अपनी जान पहचान की लेडी एक थी जिनका नाम था मिसेस डॉर्लिंग। उन्होंने क्या किया था, अपनी बहुत ही खास चीजें जो थी उनको क्योंकि श्योर नहीं था कि मतलब वॉर के बाद में हम वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, है ना। तो वो चीजें जो है उन्होंने क्या किया था, अपनी वैल्यूएबल थिंग्स को उनको सौंप दिया था कि आप अपने पास रखिए, आपके पास सुरक्षित रहेंगे, और अगर हम बच गए तो हम आपसे वापस ले लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, उनको दे दिया था और मिसेस डॉर्लिंग ने अपने घर में उनको सेफली रख लिया था। जब वॉर ओवर होता है तो जो नरेटर होती हैं ये मार्गा मिको, इनकी जो मदर होती है और इनके जो फादर होते हैं, दोनों लोग वो तो सर्वाइव नहीं करते हैं, लेकिन नरेटर बच जाती हैं। तो वहां से आती हैं और सीधे उस एड्रेस पर जाती हैं जहां पर वो मिसेस डॉर्लिंग रहती थी। और वो एड्रेस क्या है? हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। यहाँ पर वो जाती है। जब वहां पर जाती हैं और जैसे नॉक करती हैं गेट को इस हाउस नंबर में, तो ये मिसेस डॉर्लिंग वहां पर निकल के सामने आती हैं और उनसे पूछती हैं कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। उनकी माँ का नाम था मिसेस एस, ठीक है। जब वो बताते हैं कि मैं उनकी डॉटर हूँ और क्या आप मिसेस डॉर्लिंग हैं, तो वो थोड़ा सा उसको मतलब कहने का घुमाने की कोशिश करती हैं, टालने की कोशिश करती हैं, ये जताने की कोशिश करती हैं कि मैं आपको नहीं जानती, ठीक है ना, या फिर आप कभी और आइएगा, मेरे पास अभी वक्त नहीं है आपसे बात करने के लिए। उन्होंने थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि मतलब हम बहुत दूर से आए चल करके और थोड़ी सा आपसे हमें बात करनी है। उन्होंने कहा नहीं आप बाद में आइएगा, ठीक है। और इस तरीके से ब्यूटली बिहेव करती हूँ नरेटर के साथ में, और नरेटर को वापस जाना पड़ता है। नरेटर ने उस समय देख लिया था कि उस लेडी ने एक गाउन पहना हुआ था और वो गाउन नरेटर की मदर का था। तो वो श्योर हो गई थी कि नहीं मैं गलत एड्रेस पे नहीं हूँ, मैं तो सही एड्रेस पर हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये लेडी जो है मुझे जानने से, मुझे पहचानने से मना कर रही है। तो नरेटर को वापस जाना पड़ता है खाली हाथ। जब वो नरेटर जा रही होती है रास्ते में, तो रास्ते में क्या होता है कि रास्ते में बहुत सारी चीजें सोचती हैं, वो अपनी पास मेमोरीज के बारे में सोचती हैं, उस वक्त की बात सोचती हैं जब उनकी मदर ने उनको ये एड्रेस दिया था और कहा था कि ये बिलोंगिंग्स मैं इनको दे रही हूँ मिसेस डॉर्लिंग को, ठीक है। और उनको थोड़ा सा पहचान भी करवाई थी, लेकिन बचपन था उस समय, तो वो नरेटर बड़ी हो चुकी थी, काफी वक्त हो चुका था, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जब वॉर ओवर हो जाएगा तो इनसे सामान वापस ले लेना अपना, ठीक है। तो वो यही याद करते हुए जा रही होती हैं। जब घर पहुंचती हैं तो इस मतलब इन यादों को भुला नहीं पाती हैं, अपनी चीज़ों को भुला नहीं पाती हैं। थोड़े दिन बाद में उनका मतलब उनसे रहा नहीं जाता है, तो वो फिर से वापस रिविजिट करती हैं उसी एड्रेस में आकर के। और इस बार जब आती है तो वो मिसेस डॉर्लिंग वहाँ पे घर में नहीं थी,
उनकी बेटी होती है वो उनको रिसीव करती है, वो घर के अंदर लाती है, उनको एक रूम में बैठा देती है डाइनिंग रूम में, और वहाँ पर वो नरेटर ने देखा कि उनकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी, और वो ठीक पोजीशन में नहीं रखी हुई थी, सब इधर उधर रखी हुई थी, प्रॉपर तरीके से उनको नहीं रखा गया था। तो नरेटर को बहुत दुख होता है, लेकिन उन्होंने उसमें क्या क्या देखा था, एक पुराने ज़माने का एक कैंडल होल्डर था, मोमबत्ती रखने वाला, एक ऊनी कपड़ा होता है टेबल क्लॉथ है ना, जो मेज के ऊपर पड़ा हुआ था, जिसमें एक जले का निशान था उसमें, ठीक है ना, और चांदी के चम्मच होते हैं, व्हाइट टी पॉट होता है, चाय का बर्तन होता है वो, जिसमें कि गोल्डन कलर का बॉर्डर होता है, ठीक है ना, और एंटीक प्लेट्स होती हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें वो देखती है वहां पर। लेकिन उसी वक्त वो नरेटर के मन बना चुकी होती है कि मुझे ये चीजें वापस बहुत आसानी से नहीं मिलने वाली है। तो अच्छा, अब इस समय नरेटर के पास में बड़ा सा घर भी नहीं था, ठीक है ना, कि इतनी सारी चीजों को अपने घर में वो असेंबल कर सके। तो नरेटर ने सोचा कि इजी वे यही है कि मैं इनको भूल जाऊं, ठीक है, और अब मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये जहाँ पर हैं ठीक है, जहाँ पर हैं वो ठीक है। तो इसलिए वो उनको भुलाना चाहती है नरेटर, और वहाँ से निकल पड़ती है। उसने कहा ठीक है, मैं जा रही हूँ, और आपकी मदद का मैं वेट नहीं कर पाऊंगी। वहाँ से वो निकल लेती है, और रास्ते में मतलब डिसाइड करते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों को और इस एड्रेस को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी, और ये कह कर वो चली जाती है। सो ये पूरी कहानी इसके बारे में है, ठीक है ना। थैंक यू।